Assalamu alaikum dear students. This is Mudassar Naik from Hanfia Model Secondary School Ajura with a new chapter of class 10th geography, namely water resources. And today we are discussing about multi-purpose river projects and integrated water resource management. As I have earlier said, that 3/4 of Earth is covered with water. That is why Earth is called a blue planet. And water is a renewable resource because of the hydrological cycle or the water cycle. And it is said about the water that water is giving and taking life also. Although this water is available in abundance, but only 2.5% of water is fresh water. And from this 2.5%, only 4% fresh water is available in India. And due to the overconsumption of water sources, there is water scarcity threat, and it is said that in 2025 almost 2 billion people will live in absolute water crisis. And on this issue, a number of initiatives has been taken, and the topic we are going to discuss here, as I earlier said, is multi-purpose river projects and integrated water resource management. सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे वाटर मैनेजमेंट की कि दिस इज अ नीड of the time, need of the hour. Water management means planning, developing, distributing, and optimum use of water resources. साफ बात यही दर्शाता है कि जिस अंदाज से हम वाटर को यूटिलाइज कर रहे हैं, वाटर का यूज़ कर रहे हैं, डेफिनेटली द टाइम विल कम when the people felt acute water crisis. So the government has taken an initiative for the water source management. As you know that this is actually proper planning and distributing, or we can say the better use of water. But the question arises here is that how to control and manage this water resource. As far as the ancient period of history is concerned, from the very beginning, from the archaeological resources, either they are the archaeological or the historical records, that reveals, this shows that the ancient kings, the ancient rulers, the ancient emperors took initiatives to build dams, to build reservoirs and lakes, and all these were constructed from very beginning, from very ancient times, from very old times, and the same trend is going on in day-to-day world. But the fact here is that in the ancient times, the dams, the reservoirs, the lakes, the tanks were only used for irrigation, that we can say that they were used for a single cause. But as far as the modern age is concerned, day-to-day world, in this present age, these dams, these reservoirs, these lakes, these channels, these canals are used for different purposes. And the most important management or the project for this, which has been taken from very beginning, is actually the dams, which were of most importance from the very first stage.
To stop river water flow and fulfill future requirements, dams were constructed. In modern world, as I have told earlier, that it has a number of purposes. There was a single cause in the ancient period, but in this age, in this world, in this stage, it has been used. The dams has been used for different purposes like electricity generation, flood control, water supply, domestic and industrial use, fish breeding, or recreation. So, we call it a multi-purpose project. Jawaharlal Nehru की अगर हम बात करेंगे, he was the first prime minister of India. He said, dams as temples of modern world. इस बात से हमें अंदाजा होगा कि डैम्स की क्या अहमियत थी, डैम्स की क्या खासियत थी कि डैम्स को मुशाबह किया गया है टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न एज के साथ. बट everything which has a positive side has a negative side also. Same is the case with the dams also. It has some drawbacks. Number first, effect on fertility. कभी कभार क्या होता है, जो डैम्स होते हैं, डैम्स का मतलब होता है टू स्टॉप रिवर फ्लो एंड फुलफिल फ्यूचर रिक्वायरमेंट. इस रिवर फ्लो को रोकने या कम या ज़्यादा करने से कभी कभार सेडिमेंट्स पे असर पड़ता है, जिससे सॉइल अपनी फर्टिलिटी लॉस करती है. सॉइल की फर्टिलिटी बरकरार नहीं रहती है, जिससे ऑटोमेटिकली क्रॉप पे जो नेगेटिव आस्पेक्ट या नेगेटिव जो इसका जो नेगेटिव आस्पेक्ट है वो आ जाता है. तो ज़मीन जो है वो अपनी फर्टिलिटी खोती है. इसका जो दूसरा ड्रॉबैक है वो है इफ़ेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ. कभी कभार क्या होता है, समटाइम्स डैम्स डिवाइडेड द रिवर्स ड्यू टू विच एक्वेटिक एनिमल्स फोर्स्ड to move or to migrate to other side, so they felt it difficult to migrate or to survive in the new conditions. ये अमूमन हर एक जानदार के साथ होता है. जब उसको अपने एरिया से निकाला जाता है, दूसरे एरिया में रखा जाता है, अपने इकोसिस्टम से निकाल कर दूसरे इकोसिस्टम में डाला जाता है, he felt it difficult to survive in the new conditions. Same is the case with the aquatic life here. उसका जो तीसरा ड्रॉबैक है, that is the loss of biodiversity. In order to make a reservoir, number of villages and the forests जो है, they felt impact, adverse effect, negative effect and had adverse effect on their biodiversity. इससे भी मसला खड़ा हो जाता है. और एक ड्रॉबैक इसका जो है वो है क्रॉपिंग पैटर्न चेंज. As we know that due to this dam system, this reservoir system, this canal system, जब वहाँ पे पानी की सुविधा बढ़ जाती है या पानी की सुविधा कहीं इलाकों में कम हो जाती है, उससे क्या हो जाता है, लोग जो है क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करते हैं. अगर कहीं पे अभी तक पानी नहीं था, वो अपने हिसाब से फसल उगाते थे, अपने हिसाब से प्रोड्यूस करते थे, उस ऐसे क्रॉप्स प्रोड्यूस करते थे जिनमें पानी कम लगता था. लेकिन जब वहाँ डैम्स बनाए गए, जब वहाँ रिजर्वेयर्स बनाए गए, जब वहाँ कैनल सिस्टम बनाया गया, जब वहाँ जिसे हम कहते हैं कि कुल्लस बनाए गए, जब वहाँ वाटर अवेलेबिलिटी का सिस्टम मुनहदम कर दिया गया है, तो डेफिनेटली वो अपनी क्रॉप पैटर्न को चेंज करते हैं. चुनाच जो वहाँ की जो ज़मीन होती है वो एक हिसाब टाइप की ज़मीन होती है जो किसी क्रॉप जो है उसको सपोर्ट करती है, लेकिन बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर उसका क्रॉप सपोर्टिंग सिस्टम जो है वो अलग हो गया है, इससे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है. एंड द फोर मोस्ट ड्रॉबैक जो है वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी. दिस इज़ एक्चुअली द प्रॉब्लम कि आजकल के दौर में भी हम देखते हैं कि इस डैम्स, इस रिजर्वायर्स के साथ, इन कैनल्स के साथ, इन लेक्स के साथ, इन चैनल्स के साथ क्या हुआ कि जब भी कहीं पे ये अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो गई, जब भी लोगों ने ऐसी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के लिए ऐसे इकदाम उठाए, जब गवर्नमेंट ने ऐसे इनिशिएटिव लिए, तो इससे अमूमन फ़ायदा फिर से उन्हीं रिच लोगों को मिल गया, जिससे नतीजा क्या निकला, डिवीजन ऑफ सोसाइटी हो गया. रिच लोगों ने इन रिसोर्सेज को अपने इख्तियार में ले लिया, उन्होंने इन रिसोर्सेज से
से ज़्यादा फ़ायदा उठाया, बिकॉज एज दे वर इकोनॉमिकली मोर स्टैंडर्ड, उनकी इकोनॉमी की वजह से उन्होंने इन पे अपना कंट्रोल जमा दिया, जिसकी वजह से वो दिन ब दिन अमीर होते गए और गरीब जो है वो गरीब होता गया। और इसका इन सारे प्रॉब्लम्स से नजात हासिल करने के लिए, इन ऑर्डर टू ओवरकम ऑल दीज प्रॉब्लम्स, नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स हैज़ बीन टेकन, नंबर ऑफ मूवमेंट्स हैज़ बीन run by different people, number of initiatives were taken, number of movements were taken, and the most important movement regarding to overcome this problem, in order to overcome this problem of this drawback from these multi-purpose projects, Narmada Bachao Andolan, which was set up, which was taken by the Meda Patkar in mid 1980s. The one more जो आंदोलन इसके खिलाफ चलाया गया है, that was the Tehri Dam आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन and Tehri Dam आंदोलन, which was taken up by V.D. Saklani and Sundarlal Bahuguna in 1980s to 2004. So ऐसे उन्होंने ये इनिशिएटिव लिए कि ऐसे जो ड्रॉबैक्स है, उन ड्रॉबैक्स से नजात हासिल करने के लिए उन्होंने ये आंदोलन चलाया है। और कुल मिला के हम देखते हैं कि अगर चीज़ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स है तो मैनेज वाटर रिसोर्सेज, अगर इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी थे, और उन नेगेटिव एस्पेक्ट्स से नजात हासिल करने के लिए वहाँ जहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ के उन लोगों ने ये इनिशिएटिव लिए ताकि उनको ऐसे ड्रॉबैक से नजात मिले। तो इसके बाद जो हमारा और एक यहाँ पे टॉपिक है, डैट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है, इसका मतलब क्या होता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है टेक्निक ऑफ कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर इनटू नेचुरल रिजर्वोयर्स और टैंक्स। यानी ऐसी टेक्निक, ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा सपोर्टिंग सिस्टम जिससे हम रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं या रेन वाटर को स्टोरेज करते हैं। फिर ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसका कलेक्शन या स्टोरेज किस में करें। क्या हम टैंक्स में करेंगे, क्या हम रिजर्वर्स बनाएंगे, क्या हम वो जो कुएँ होते हैं क्या वो खोदेंगे घर में, या कोई और सिस्टम जो है वो कर सकते हैं। दिस इज़ एक्चुअली द अल्टरनेटिव टू मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। उन ड्रॉबैक्स से निकलने के लिए जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स का इनिशिएटिव हाथ में लिया गया था, चाहे हम डैम्स की बात करेंगे, कैनल्स की बात करेंगे, चैनल्स की बात करेंगे, कुल्स की बात करेंगे, या और किसी चीज़ की बात करेंगे, या रिजर्वर्स की बात करेंगे, उन ड्रॉबैक से नजात हासिल करने के लिए जो अल्टरनेटिव उनको दिखा वो था रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग था, इसका सबसे अहम जो बुनियादी जो बेहतरीन मसला इसमें यह था कि ये सोशली, इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटली की अगर हम बात करेंगे ये कंसिडर किया जाता था। यानी फ्रेंडली था, ये सोशली फ्रेंडली था, ये इकोनॉमिकली फ्रेंडली था, ये एनवायरमेंटली भी फ्रेंडली था। यानी इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी जिससे कोई प्रॉब्लम हो जाती, कोई ड्रॉबैक इसमें ऐसा नहीं था, कोई मसला इसमें ऐसा नहीं था जिससे प्रॉब्लम हो जाती। तो लोग जो थे वो बहुत पहले से ही मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के साथ साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में भी इल्म रखते थे। यानी लोग इसके बारे में बहुत पहले से ही जानते थे। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग पीपल वर वेरी मच अवेयर अबाउट द रेन water harvesting system. In mountains, people made gulus and kulls for irrigation. Rooftop rainwater harvesting was common there, and underground tanks were also constructed to store rainwater. यानी ये जो रूफटॉप रेन वाटर था, ये इसमें सबसे अहम था कि उसको वो कामन था। लोग क्या करते थे, वो अपने मकानों की जो छत हुआ करते थे उनको जो कवर करते थे नीचे, जहाँ से वो पानी नीचे आ जाता, और फिर एक पाइप रखी जाती थी, उस पाइप के ज़रिए से उस वाटर को ड्रेन किया जाता था और उसको किसी स्टोरेज में रखा जाता था, स्टोरेज वेसल में रखा जाता था। स्टोरेज जो उसके लिए स्टोरेज वो बनाते थे उसमें रखा जाता था, उसके लिए जो रिजर्वर बनाते थे उसमें रखा जाता था, उसके लिए जो स्टोरेज करने के लिए वो जगह मुंतखब करते थे उसमें रखा जाता था, और बाद में उस पानी का इस्तेमाल कहीं और किया जाता था। तो इसके लिए वो अंडरग्राउंड टैंक्स भी बनाया करते थे कभी कभी,
ताकि इस रेन वाटर को स्टोर किया जाए। तो ये जो इनिशिएटिव, ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इनिशिएटिव या रूफ टॉप हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का जो इनिशिएटिव सबसे पहले जिस स्टेट ने लिया, उस स्टेट का नाम है तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच हैज मेड द इनिशिएटिव फॉर रूफ टॉप हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। और कर्नाटका का एक गांव है जो कि एक बैकवर्ड गांव है, गिंडाठुर विलेज ऑफ कर्नाटका। वह जो गिंडाठुर है, इट हैज़ देयर आर एट लीस्ट 200 हाउस होल्डर्स हु सपोर्ट द सिस्टम, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, इस रूफटॉप हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का इनिशिएटिव उन्होंने लिया ताकि पानी को बचाया जा सके जो रेन वाटर है, क्योंकि इट इज़ एक्चुअली द प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। ये जो रेन वाटर होता है ये प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है। इस हिसाब से उन 200 फैमिलियों ने भी ये इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने इसके लिए बहुत ज़बरदस्त काम किया है, इस पानी को बचाने के लिए, इस पानी को सेव करने के लिए। और उसी पानी से फिर जो आने वाली जो प्रॉब्लम्स हुआ करती थी उनको, जो आगे दिक्कतें होती थी उनको, उन दिक्कतों से निजात हासिल करने के लिए वो इस पानी को बचाते थे, इसको स्टोर किया करते थे और फिर इसी पानी का इस्तेमाल किया करते थे। अपने सारे मसले मसाइलों, उनके जो सारे मसले मसाइल हुआ करते थे वो भी इससे क्या हो जाता था, वो भी इससे दूर हो जाते थे। तो ये एक बेहतरीन इनिशिएटिव है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और बीइंग ए स्टूडेंट्स ऑफ जियोग्राफी, बीइंग ए स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, we should also have to take initiatives. We should have to aware the people about the rainwater harvesting system or the different projects just like the dams as we have talked in this chapter. तो हमें भी ये इनिशिएटिव लेना चाहिए, हमें भी लोगों को अवेयर करना चाहिए कि ठीक है, although this water is a renewable resource, although because of the hydrological cycle or we can say the water cycle, ये जो वाटर है ये हमारे पास बार बार आ जाता है, ये रिन्यू हो जाता है, but we should have to be very much aware about the facts that there are several areas, there are several countries where the people felt, जहाँ पे लोग तरसते हैं पानी, सही पानी हासिल करने के लिए। जैसे मैंने इसमें पहले भी बताया था कि राजस्थान की जो औरतें हुआ करती है वो बहुत 4-4, 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर चली जाती है और उनके मटके उनके सर पर रहते हैं, जिससे वो पानी दूर दूर के इलाकों से लाया करते हैं जहाँ पे वो उनको पानी अवेलेबल हो जाता है। तो हमें ये इनिशिएटिव लेना चाहिए और हमें अपने घर वालों को, अपने जो एरिया में लोग रहते हैं, हमें भी उनको अवेयर करना चाहिए और ख़ुद भी पानी के बेतहाशा इस्तेमाल से बचना चाहिए। इस तरीके से जो टॉपिक है हमारा ये अपने ख़िताम को पहुंच गया। उम्मीद करता हूं कि आप ये टॉपिक अच्छे से समझोगे। फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़।